Hi, good afternoon, Pratik. Good afternoon, Siddhant. Welcome to the session. We are just waiting for 2 more minutes to join more. Hi, good afternoon, Sushila. Thanks for joining. Cybersecurity Awareness Program for empowering citizens to defend against cyber threats. In today's digital world, cyber threats like phishing, ransomware, and identity theft are becoming more common. To stay safe, citizens need to be aware of these threats and adopt simple, yet effective, online safety practices. This includes using strong passwords,
enabling multi-factor authentication, and staying alert to suspicious emails and links. Protecting personal data by limiting what is shared online and using secure connections for banking and shopping is essential. Additionally, keeping software updated and backing up important data can protect against attacks. If a cyber incident occurs, knowing how to report it and having a recovery plan in place can minimize damage. By staying informed and vigilant, everyone can play a role in defending I hope against all can cyber hear threats. the voice. Yeah, no, sir. I am ready. Good afternoon, everyone. We'll wait 2 more minutes. Let's see who else are joining in. Okay, lots of people are waiting in queue. So, Sachin sir, are we ready? We can start. Rajat sir has also joined as our honorable guest, Mr. Rajat Kumar. He has also joined. Welcome, welcome, Rajat sir, and welcome all the attendees. Can anyone confirm? Am I? Anyone can hear me? Great, great, great.
Okay, so good afternoon, everyone. Thanks for joining this session. Myself, Anand Samudra, I am the founder of Vitalus Intelligence Private Limited company, who works for the digitalization. And in this field, we are working on. We have a cybersecurity team with us who delicately works for our who we are working for our clients to uh, better understand their requirement and enhance their security level of in companies there are lots of data insecurity. Data cannot be moved out of the organization, so our team takes care of our clients to make sure that every data, जो कुछ भी डेटा उनकी कंपनी में है, उनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कैसे। तो ये सब काम करते करते आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे सेशंस में साइबर क्राइम्स बहुत सारे हो रहे हैं। तो सचिन जी, रजत जी जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट है, ये कंसिस्टेंटली पुलिस के साथ भी हम लोग कोलैबोरेट करते हैं ये दोनों, और बहुत सारा काम किया है इन्होंने रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में, और कंसिस्टेंटली उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं इसके ऊपर से। तो बाइटलस उनको स्पॉन्सर कर रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पीपल अवेयरनेस के लिए कुछ वीडियोस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आप बाइटलस को सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, जहाँ पे आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी मिल जाएगा। हाउ टू प्रिवेंट, सी ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हमारा एम यही है कि कैसे प्रिवेंट करें इस चीज को। प्लस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन से, लाइक साइबर करियर इन साइबर। तो नेक्स्ट हमारा करियर इन साइबर सेशन भी हम लोग करने वाले हैं रिगार्डिंग द सेम। So thank you once again. Welcome you all for joining this session. So let's start this session. I will hand it over to Sachin ji, Sachin Bhandulkar, जो cyber security expert है, and he is hosting for the. Thanks you Sachin for hosting this session for me. And over to you, Sachin. Thank you. Thank you, Anand sir, for the introduction. Hello, my name is Sachin Bhandolkar. I'm a cyber consultant also, and we're working on the cyber police also. मुझे आज ये साइबर हेलो आई हेरेबल हेलो Yes, sir. We can hear you loud and clear. या आज मुझे साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम रखना क्यों चाहता था, क्योंकि है ना, मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट जब भी कुछ त्यौहार आता है, कुछ भी आता है, तो साइबर जो क्रिमिनल्स है वो एक्टिव रहते हैं ऐसे टाइम पे जब त्यौहार रहता है, क्योंकि उसी टाइम पे अपना मनी बैंक में ही रहता है या हम लोग कुछ शॉपिंग करते हैं, इसके लिए तो एक्टिव रहते हैं। तो इसके लिए मैंने ना सोचा था कि ये वेबिनार त्यौहार के पहले करें, तो एटलीस्ट त्यौहार के बाद कोई ज़्यादा किसी के साथ साइबर फ्रॉड ना हो जाए, या किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए कि जो साइबर तरीके है तो जान ले तो पहले ही प्रिवेंशन हो जाए। तो इट्स आज के जो गेस्ट है रजत सर, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ स्क्रीन। हेलो रजत सर, आई इनवाइट यू। हेलो रजत सर, थैंक यू फॉर द कमिंग दिस वेबिनार। ये वेबिनार में आने में जो टाइम दिया है उसके लिए थैंक्स। रजत सर के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि इनके पास अंतर्राष्ट्रीय 23 सर्टिफिकेट्स उन्होंने गेन कर चुके हैं, एंड ये अचीव मतलब साइबर सिक्योरिटी के इसमें फील्ड में बहुत से अच्छे करियर भी उन्होंने अचीव किया है। सो रजत सर, प्लीज टेल मी अबाउट यू। Hello everyone, good morning to all of you. So myself is Rajat and I'm working as a cybersecurity engineer in a multinational corporation, and I have 7+ years of experience with the national and international certifications as well. And I have trained around 15,000 plus students in cybersecurity, and I was working as a law enforcement agencies with the law enforcement agencies solving in complex cybercrime cases. एंड जो आज का जो सेमिनार है, जो एजेंडा है हमारा, वो है कि जो साइबर क्राइम्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब सबको पता है कि डिजिटलाइजेशन जब से हुआ है, साइबर क्राइम भी काफ़ी सारे बढ़ गए हैं। तो जब तक इंटरनेट नहीं था, हर किसी के हाथ में फ़ोन नहीं था, और जो आपके पास इतना ओपन स्पेस नहीं था इंटरनेट को लेके, वो अब काफ़ी हो गया है।
तो अब हर छोटे से बच्चे से लेके बड़े के पास फ़ोन है और अनलिमिटेड डाटा आपको मिल रहा है और आप स्क्रॉल करते रहते हैं, चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं इंटरनेट को। तो जितना आप उसको कंज़्यूम कर रहे हैं, उतने चांसेस भी हैं कि आपके पास जो थ्रेट्स हैं, वो भी ज़्यादा हों। तो आज हम उन्हीं थ्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से साइबर क्राइम्स हैं, जो एक आम आदमी के साथ हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि ये एक साइबर क्राइम है और किस तरीके से आप उससे बच सकते हैं, किस तरीके से आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो शायद आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इस तरीके के साइबर क्राइम्स को फेस किया भी हो या आपके रिलेटिव्स में, नोन में, आपके कॉलीग्स में, फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा जिन्होंने इस साइबर क्राइम में कहीं न कहीं कोई ना कोई हार्म उनको हुआ होगा। तो आज हम उन्हीं केसेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ताकि आपको पता चले कि कौन-कौन से साइबर क्राइम केसेस हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो मेरी स्क्रीन सबको विज़िबल है? Yes, sir. We can see your screen. ओके। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि साइबर थ्रेट्स होती क्या हैं। मेन कंसर्न है हमारा कि हमें पहले पूरा मोडस ऑपरेंडी भी समझना है, तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर थ्रेट्स एक ऐसा एक्शन हो सकता है या ऐसी कोई इवेंट हो सकती है जिससे आपके कंप्यूटर, फ़ोन, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स या आपके बैंक अकाउंट्स या फिर आपका कोई भी ऐसा डिवाइस जो आपका है और आपके बिना परमिशन के कोई उसके अंदर एक्सेस ले लेता है। एक्सेस मतलब घुस जाता है या फिर वो इंट्रूड कर देता है। तो वो सब क्या है, आपकी बिना परमिशन के, आपकी मर्ज़ी के बिना अगर आपके किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर कोई अपना एक्सेस पा लेता है और आपकी कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ से चुरा लेता है, वो सब आपका साइबर थ्रेट्स के अंदर आ जाता है, साइबर क्राइम्स के अंदर आ जाता है। अब ऐसा हैकर्स करते क्यों हैं? उनको क्या फ़ायदा है? तो अगर हम बात करें कि उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आपकी प्राइवेसी, आपका डाटा। अगर किसी भी हैकर को, एक अटैकर को आपका डाटा मिल जाता है, तो वो उसका किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर सकता है। अब कॉमनली हम नॉर्मल पर्सन हैं, नॉन टेक्निकल पर्सन एक जिसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो कहेगा कि अगर मेरा फ़ोन हैक हो भी गया, इन केस अगर हैक हो भी गया, तो क्या ही ले लेगा? मेरे फ़ोन से क्या चला जाएगा? मेरा क्या लॉस हो जाएगा? मैं फ़ोन को चेंज कर लूँगा या मैं फ़ोन को रीसेट कर दूँगा, लेकिन आपके लिए वो कॉमन चीज़ है क्योंकि आप उसको यूज़्ड टू हो चुके हो। आपके लिए कॉन्टैक्ट की लिस्ट बहुत कॉमन है। आपके लिए बैंक के अकाउंट नंबर बहुत कॉमन है क्योंकि वो आपको पता है क्या ही हो जाएगा इससे। लेकिन हैकर के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो उससे बहुत कुछ कर सकता है। इवन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से वो बहुत कुछ कर सकता है। कुछ केस स्टडीज़ की मैं बात करूँगा। वेबिनार थोड़ा-सा लंबा हो सकता है लेकिन वेबिनार बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आपको और अच्छे से एक-एक चीज़ आपको मैं समझा दूँगा और इससे बचने के तरीके भी बताऊँगा ताकि आपको प्रॉपर अवेयरनेस रहे और इन फ्यूचर आप 4 लोगों को भी ये समझा पाओ कि अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने आता है तो आपको पैनिक नहीं होना और इस किस तरीके से आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो हैकर्स आपके सिस्टम के डाटा को चुरा सकते हैं या वायरसेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके डाटा को डिलीट कर सकते हैं और आपके डाटा को कहीं भी इन फ्यूचर वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा पूरा प्रोसेस आपका साइबर थ्रेट्स में हो सकता है, साइबर क्राइम्स में हो सकता है। साइबर थ्रेट्स और साइबर क्राइम में आपको फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही, चांसेस हैं कि फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही क्योंकि जितने भी हैकर्स हैं वो आपको फाइनेंशियली लॉस कराने के लिए ही, आपसे पैसे लेने के लिए ही कहीं न कहीं आपको हैक कर रहे हैं। बिना मतलब के वो आपको हैक करेंगे भी नहीं। पहला तो ये मोटिव हो सकता है। दूसरा आपका डाटा, जो फाइनेंशियल लॉस से भी बड़ा उनके लिए बेनिफिशियल चीज़ होती है। तो डाटा जो है वो आपका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो पैसों से ज़्यादा उनके लिए वैल्यूएबल है क्योंकि वो उसको किसी भी जगह, किसी भी फ़ॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और हो सकता है कि जितना पैसा वो आपसे लें उससे 10 गुना अमाउंट पे उस डाटा को वो बेच दें। तो अब डाटा की बात मैं सिर्फ़ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। डाटा का मतलब कुछ भी हो सकता है। वो आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, आपकी फैमिली फ़ोटोज़ हो सकती हैं, आपके कॉन्टैक्ट की पूरी लिस्ट हो सकती है, आपकी कॉल लॉग्स हो सकती है, आपके ओटीपीज़ हो सकते हैं एसएमएस के। क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी हम बैंकिंग ऐप्स यूज़ करते हैं, सारे हमारे मोबाइल नंबर से लिंक्ड होते हैं। अगर इन केस किसी को भी आपका ओटीपी एक्सेस मिल जाए, तो आपके पूरे फ़ोन को हैक करने की ज़रूरत नहीं है उसे। उसे सिर्फ़ आपके ओटीपी को हैक कर लेना है। उसके बाद वो आपके ओटीपी एक्सेस से आपके सारे बैंक अकाउंट्स को हैक कर सकता है। इवन वो आपके आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकता है, वो आपके पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकता है। आपके जितने भी
इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड से उनको रीसेट कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आगे कवर करेंगे। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स की, जो जिस पे हमारी टीम ने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके इनको अच्छे से लिखा है जी। ये वो ऐसे नहीं है कि इनके अलावा कोई और स्कैम्स नहीं है, स्कैम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ये स्कैम्स हैं जो ट्रेंडिंग में रहे हैं, जो आपका 2024 में बहुत ज़्यादा हुए लोगों के साथ और अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। और आप सभी को पता है कि मार्च का मंथ है, होली का फेस्टिवल आने वाला है, तो साइबर क्राइम्स भी और अब ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो जाएँगे, क्योंकि जब होली आती है तो आपको पता ही है, कोई भी फेस्टिवल आता है तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, शॉपिंग साइट्स होती हैं, उन पे डिस्काउंट्स, ऑफ़र्स, प्रमोशंस ये सब चलना शुरू हो जाते हैं, उनकी एडवर्टाइज़मेंट आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हैकर्स इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको एक बल्क डिस्काउंट देंगे जिसमें आप कहीं न कहीं ट्रैप हो जाएँगे। इसका मैं आपको हर एक केस का एक रियल टाइम एग्ज़ाम्पल समझा के चलूँगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन्स की इसके टॉपिक्स की तरफ। तो पहला है हमारा डिजिटल अरेस्ट। तो उसके बाद हमारा आता है फेक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग स्कैम। थर्ड आता है हमारा डीफेक वीडियो ब्लैकमेल। फिर इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट स्कैम्स। उसके बाद आता है सेक्सटॉर्शन स्कैम्स, फेक डिजिटल लोन ऐप्स, क्यूआर कोड पेमेंट स्कैम्स। फिर जॉब्स के भी आते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स और आपका वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स होते हैं, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड्स भी हो जाते हैं लोगों के साथ। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप साइबर क्राइम्स तो है ही है, ये तो हमेशा से होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। जब तक लोग अवेयर नहीं हो जाएंगे, इन क्राइम्स को रोकना थोड़ा मुश्किल है। साइबर क्राइम के लिए साइबर सेल कितनी भी कोशिश करे, इवन जितने भी साइबर एक्सपर्ट्स और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो कितनी भी अपनी तरफ से कर लें, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे तब तक ये साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव रहेंगे और वो ऐसे अटैक्स परफॉर्म करते रहेंगे। अपनी पहली स्लाइड की तरफ हम चलेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो है आपका स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस यस सर, स्क्रीन विजिबल है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम दिख रहा है अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आई होप आपने न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर भी कहीं न कहीं किसी न किसी की वीडियो आपने इससे रिलेटेड देखी होगी और यूट्यूब पर भी इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ हैं जिनमें लोगों ने बताया है कि ये एक्चुअल में है क्या। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये साइबर क्रिमिनल्स का दिया हुआ एक टर्म है, जिसको बताया गया है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। बेसिकली आपने नॉर्मल अरेस्ट के बारे में तो सुना होगा कि जब कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस आपके घर आती है या फिर आपको पुलिस स्टेशन बुलाती है और आप पे अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके अगेंस्ट जो भी लॉ पास होता है या जो भी आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया उसके बेस पे ही आपका अरेस्ट होता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट एक नई चीज़ बनाई साइबर क्रिमिनल्स ने। उन्होंने क्या किया कि एक फेक कॉल आती है एक पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से और वो खुद को बताता है कि मैं एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली पुलिस से या फिर मैं हरियाणा पुलिस या किसी भी पुलिस से, मुंबई पुलिस से, मैं कहीं से भी जो भी स्टेट में वो है, वो बताएगा कि मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ और आपका नंबर या फिर आपका बैंक अकाउंट या फिर आप किसी भी तरीके से आपको वो इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि आप एक साइबर क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए हो। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई अचानक से कॉल करके बोलता है कि आपका नंबर एक ड्रग डीलर के पास हमें मिला है और हमने जब ड्रग डीलर से इन्वेस्टिगेशन की तो उसने आपका नंबर दिया कि वो आपसे डील करता है ड्रग्स की। एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। अब इस सिनेरियो में जब आपके पास कॉल आएगी तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो इन सब चीज़ों में कभी इंक्लूड ही ना रहा हो, इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो उसका, तो उसको पैनिक सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए। वो घबरा जाएगा एकदम से कि अचानक क्या हुआ? खासकर जब पुलिस से कॉल आती है तो हमारे देश में। तो अब इस सिचुएशन में पुलिस वाला आपको बताएगा कि आपका नंबर इस तरीके से हमें मिला है या आपका नाम या आपका बैंक अकाउंट या किसी भी तरीके से कि आपकी इन्वॉल्वमेंट वो दिखा देगा और हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना है, तो हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। अब डिजिटल अरेस्ट में काम कैसे होता है? वो आपको कहेगा कि एक लैपटॉप या फ़ोन के आगे आप अपना वेबकैम ऑन कीजिए और आपको अब हमारे सामने ही रहना होगा, आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं। मतलब फिज़िकली आपके घर नहीं आएँगे आपको अरेस्ट करने के लिए, ना आपको बुलाएँगे। वो कहेंगे कि बस इंटरनेट का ज़माना है तो डिजिटल अरेस्ट होगा, वीडियो कॉल पे बैठिए हमारे सामने। वो आपको तब तक बैठा के रखेंगे जब तक आप खुद उनसे परेशान होके ना पूछ लें, सर कोई सॉल्यूशन? इसका मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहेंगे आप पे तो बहुत सीरियस केसेज़ हैं, आप पे तो बहुत ज़्यादा चार्जेज़ आएँगे और
इससे बच पाना नामुश्किल है। अभी हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं इस बारे में और आगे देखो क्या होता है। वो आपको 8 घंटे, 10 घंटे, इवन 2-2, 3-3 दिन तक, 1-1 हफ्ते तक लोगों को रखते हैं वो, जब तक वो परेशान ना हो जाए। 24 घंटे आपको वीडियो कॉल पे रहना पड़ेगा। फ़ोन या लैपटॉप आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होने देंगे, वो चार्जिंग पे लगा के रखेंगे। और इवन ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप सिर्फ उस सिचुएशन में यही सोचेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया और मैं इससे कैसे बचूं। कुछ टाइम बाद वो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के रखेंगे जो बिल्कुल लेजिटमेट लगेंगे, एकदम ओरिजिनल लगेंगे, जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर तो हुई है, प्रॉपर तरीके से, एकदम ओरिजिनल की तरह। हालाँकि उनको बारीकी से देखा जाए तो आप पहचान लेंगे कि नकली है, या आप उनकी लेजिटिमेट साइट पे जाके चेक करेंगे, या किसी भी तरीके से। इवन वो पुराने केसेस के साथ आपको मैप कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से वो उनको आपको यकीन दिलाने में मुश्किल हो जाएगा कि आप बेकसूर हैं। फिर जब आप परेशान हो जाते हैं 2-4 दिन, 5 दिन के बाद, तब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं? सेटलमेंट चाहते हैं या फिर आपको हम कोर्ट में पेश करें? तो इवन सॉफ्ट सी बात है कि आप यही कहेंगे कि सर देखो, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, आप बताइए क्या सॉल्यूशन है? तब वो आपसे बोलेंगे कि आप इतना पे करो, तब हम अपने सीनियर से बात करेंगे आपके केस को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ़ इल्लिटरेट पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत-बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड, इवन लॉ एनफोर्समेंट के लोग तक स्कैम्ड हो गए। डॉक्टर्स, टीचर्स, रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर्स, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स, पुलिसमैन, इवन और भी बहुत सारी कैटेगरी के लोग जो बहुत एजुकेटेड और बहुत वेल बिहेव्ड लोग, सिटीजन माने जाते हैं हमारी कंपनी में या फिर हमारी सोशल गैदरिंग में, वो सब भी इससे स्कैम हो गए। और उनसे छोटे-मोटे अमाउंट नहीं, बहुत बड़े-बड़े अमाउंट लिए गए, लाखों में लिए गए, किसी से 10 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, 1.5 करोड़। जैसा उन्होंने, जिस क्लाइंट को उन्होंने पकड़ा, जिसको विक्टिम बनाया, उससे उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ देख के उसी हिसाब से चार्ज किया। तो ये इस तरीके से आपको फँसाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। अब ये तो समझ में आ गया कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, काम कैसे करता है, कौन कॉल करेगा, इवन बचने के अब तरीकों की बात कर लेते हैं। तो कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको ऐसे कॉल करके नहीं बोलेगा कि हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? या तो आपको थाने बुलाएगा, या आपके घर आएँगे पुलिस वाले, या आपको कोई नोटिस भेजा जाएगा, कुछ भी ऐसा। लेकिन ये कोई डिजिटली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को मना कर दिया कि हमने कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा लॉ पास नहीं किया कि भई घर बैठे ही हम आपको अरेस्ट कर लें। आप खुद सोचो, अगर आपने कोई साइबर क्राइम किया है या आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, तो आपको आपके घर में क्यों रहने देगी पुलिस? आपको लॉकअप में बंद करेगी या आपको थाने लेके आएगी। तो ऐसे केसेस में थोड़ा अपने आप को पैनिक होने से बचाना है आपको। अपने हमेशा वेरीफ़ाई करना है कि जो मुझे कॉल आ रही है, जो मुझे मेल आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? किसी ऑफ़िशियल से आ रहा है? किसी डायरेक्टली अथॉरिटी से आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप क्रॉस चेक कीजिए उसको। और कभी भी वो आपसे कोई ओटीपी माँगे, बैंक की डिटेल माँगे, कोई पैसा माँगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगे, वो आपको कभी भी देने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपसे ओवर द फ़ोन ये सब चीज़ें नहीं माँगेगी। और आपको गवर्नमेंट के तो लॉ पता ही हैं। डिजिटलाइज़ेशन कितना भी हो, आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ऑफ़लाइन ही प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है? और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, आप डिजिटल अरेस्ट हुए नहीं, बच गए। आपको पता था पहले से, जैसे आपने ये सेशन लिया और आपके साथ कल को ये कुछ हो जाता है ऐसा, और आपको पता था डिजिटल अरेस्ट हो गया मेरा आज। किसी ने मुझे कॉल करी, मुझे धमकाया और मुझे बोला मैं डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूँ आपको। तो आपको तो पता है। तो ऐसे केस में जो नंबर आपके पास आया है, जो चैट्स आपके पास आई हैं व्हाट्सएप पे, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनके नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और उनको रिप्लाई मत कीजिए। और वो जितनी भी चीज़ें हैं, उसको साइबर क्राइम पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। जो साइबर क्राइम पोर्टल है, उसके बारे में लास्ट में बात करूँगा। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी है 1930। आप इस पे कभी भी कॉल करके उनको इस बारे में बता सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, तो आप 24 घंटे के अंदर बता दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे बैंक और साइबर क्राइम सेल को बहुत ईज़ी हो जाता है आपका पैसा रिफंड कराने में, रिटर्न कराने में, रिवर्स प्रोसेस कराने में, ताकि जो स्कैमर है वो आपके पैसे को यूज़ ना कर पाए और फ्रीज़ हो जाए उसका अकाउंट, या उसका पैसा वो जो आपने ट्रांसफ़र करवा दिया उसने आपसे गलती से। तो ये है आपका डिजिटल अरेस्ट। पहला स्कैम तो ये है, जिसके बारे में हमने समझा कि कैसे काम करता है, क्या होता है और कैसे इससे बच सकते हैं।
अब आ जाते हैं हम दूसरे स्कैम की तरफ, जिसको हम बोलते हैं फेक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग स्कैम। अब ये क्या हो सकता है? ये भी एक तरीके का वही स्कैम है, लेकिन इसमें डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करते। फ्रॉडस्टर्स जो होता है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको नकली लीगल नोटिस भेजेगा। ठीक है, नकली, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्टैम्प दिखा देगा, आपको सिग्नेचर दिखा देगा, कोर्ट के प्रॉपर लेटर हेड पे बना के दिखा देगा, क्योंकि आपको पता है एआई का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन है। अब ऐसी कोई चीज़ नामुमकिन जैसी नहीं है जिसको हम लोग कर ना सकें, मॉडिफिकेशन ना कर सकें, चीज़ें ना कर सकें। बहुत ईज़ी है वो सब चीज़ें करना, हम कर सकते हैं बड़ा ईज़िली। तो वो आपको ऐसे फेक लेटर्स बना के या फिर आपको समन्स बना के भेज देंगे और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे। आप घबरा जाओगे और उसमें कहीं न कहीं आपको एक रिटर्न एड्रेस या कोई नंबर या ऐसा कुछ दिया होगा कि जिससे आपको बोला जाएगा कि अगर आप चाहते हो कि ये ड्रॉप हो जाए या आप इसको सेटल करना चाहते हो, तो आप इतना पैसा हमें पे कर दो ताकि हम इस चीज़ को खत्म कर दें। ठीक है? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट बोल के, नॉन एक्जिस्टेंस केसेस के सेटलमेंट के नाम पे। तो अभी ऐसे केसेस से बचने के लिए आपको क्या करना है, वही सेम चीज़ है, आपको पता लगाना है कि ये एक्चुअल में असली है या नहीं। इसके लिए आप किसी कंसल्ट कर सकते हैं किसी लॉयर से जो इस चीज़ में मास्टर्स होते हैं, उनको पता है कि किस तरीके का केस किस एक्टिविटी पे बनता है और किस एक्टिविटी पे किस तरीके का समन पास होता है। कभी भी ईमेल के बेस पे व्हाट्सएप पे कोई मैसेजेस आ रहे हैं या ओटीपी के लिए कोई डिमांड कर रहा है या फिर आपके टेक्स्ट मैसेजेस में कोई मैसेज आ रहे हैं, आप कभी भी उनको रेस्पॉन्स ना करें। पहले अपने सोर्स को, यानी सोर्स मतलब जहाँ से वो आ रहा है, वहाँ चेक करें कि वो लेजिटिमेट है या नहीं, या ऑफिशियल साइट पे या कोई प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पर जहाँ पर आपको कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है। कस्टमर केयर नंबर से याद आया, लोग बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं कि वो सीधा गूगल पे लिख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अ मेरे पास एक वन प्लस का फ़ोन है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं वन प्लस की साइट पे जाके वहाँ से उसका सर्विस सेंटर नंबर या सर्विस सेंटर का एड्रेस या फिर उनका हेल्पलाइन नंबर चूज़ करूँगा। ये एक सही मूव है, सही तरीका यही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, सीधा गूगल ओपन करते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं वन प्लस सर्विस सेंटर नंबर। अब ऐसे में क्या होता है, जो स्कैमर्स होते हैं उन्होंने भी अपने नंबर लगा रखे होते हैं। जब स्कैमर आपको वो नंबर वहाँ पर देगा तो चांसेज़ हैं कि आप उस नंबर को डायल कर ही दें, और जब आप डायल करेंगे तो वो आपसे प्रॉपर ऐसे सर्विस सेंटर पर्सन की तरह बात करेगा। वो आपसे ओटीपी भी लेगा, आपसे नंबर भी माँगेगा, आपसे डिटेल भी लेगा, आपसे आपके प्रोडक्ट की डिटेल भी लेगा और फिर आपसे स्कैम कर देगा। तो कभी भी आप कभी भी किसी भी अ, कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करते हैं तो आप हमेशा उसकी ऑफ़िशियल साइट से ही जाकर उसे देखें, वहाँ से डायल करें और वहाँ से कॉपी करके यूज़ करें। कभी भी किसी थर्ड पार्टी से या किसी ऐड में या पे कहीं भी आ रहा है, मत उस पे ना जाएँ। तो फेक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग स्कैम्स में हमारा ये होता है कि आप 3 चीज़ें ध्यान में रखें। कभी भी कोई ऐसी पेमेंट ना करें किसी भी केस को सेटल करने के लिए। पहले वेरीफ़ाई करें कि क्या है, क्या नहीं है। वो बोल सकते हैं आप पे फाइन है या ये है, वो है, जो है भी। और लीगली नोटिस के लिए आप हमेशा ऑफ़िशियल सोर्स से उसको पता करें। अगर वो जहाँ से भी आया है तो एक बार वहाँ जाकर पता करें और किसी लॉयर से ज़रूर इस बारे में कंसल्ट करें। वो ज़्यादा सही तरीका है। फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, डीप फेक। अब ये तो आपने सुना ही होगा। चैट जीपीटी के बारे में सब जानते हैं, फ़ेमस है, हर कोई यूज़ कर रहा है। तो चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं जिनसे आप नकली वीडियोस बना सकते हैं, फ़ोटोज़ जनरेट कर सकते हैं, किसी का फेस किसी के ऊपर लगा सकते हैं। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें फेस किसी लड़की का था, बॉडी किसी और लड़की की थी, फेस उस एक्ट्रेस का लगा के और उसको वायरल कर दिया गया था। वो डीप फेक का केस था। तो साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, एआई को यूज़ कर लेते हैं एक फेक वीडियोज़ बनाने के लिए विक्टिम की। और इसमें मोस्टली न्यूड वीडियोज़ बना दी जाती हैं या फिर न्यूड फ़ोटोज़ बना दी जाती हैं और आपको फिर कॉन्टैक्ट किया जाता है। जिसकी भी वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई जाएगी, उसको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और उसे बोला जाएगा कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं ये तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूँगा। अब एक नॉर्मल पर्सन, जिसने कभी ऐसा सोचा भी ना हो कि कोई ऐसा उसके साथ कर सकता है, वो घबरा ही जाएगा और वो किसी को भी इस बारे में बताने से बचेगा। पुलिस के पास जाने से भी बचेगा, अपनी फैमिली में बताने से भी बचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है।
कभी भी ऐसी कोई मैसेज, कॉल, वीडियो आपको भेजता है, आप सीधा उसको ब्लॉक करें और साइबर क्राइम पर उसकी कंप्लेंट डालें और हमेशा बचें। जो भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो क्या डाल रहे हैं थोड़ा ध्यान रखें। ब्लैकमेल जो कर रहा है आपको, उसके नंबर को साइबर क्राइम 1930 पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो या cybercrime.gov.in वेबसाइट पे जाके एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। और हमेशा किसी ऑथराइज्ड पर्सन से इस बारे में बात करें कि लीगल एडवाइस लें और पुलिस के पास जाएँ अगर कोई ज़्यादा ही परेशान आपको कर रहा है। तो अगर वो उनके जो चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि वो आप पे साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर डाल देंगे कि आप परेशान हो जाओ और आप पैसे दे ही दो, ठीक है? तो वो सबसे पहले एक टारगेट चुनते हैं, उसका डीफेक बनाते हैं। पहले वो ऐसे नहीं है कि किसी का भी बना देंगे, पहले वो देखेंगे कि किसका डाटा मुझे ज़्यादा मिल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ोटोज़ डाल रखी है सोशल मीडिया हैंडल पे, आपका अकाउंट है पब्लिक और आपने पूरी फ़ोटोज़ डाल रखी है। क्रिमिनल्स के लिए पूरी फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करना ज़्यादा ईज़ी रहता है क्योंकि उसमें फुल बॉडी आ जाती है आपकी। अब वो क्या करेंगे, डीफेक क्रिएट करेंगे आपकी फुल बॉडी की न्यूड बनाकर। एक न्यूड फ़ोटो क्रिएट कर देंगे आपकी प्रॉपर कवर्ड फ़ोटो से, जो आपकी फुल होगी। उसके बाद उस पर्सन को वो कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे थ्रेट करेंगे, ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे, धमकी देंगे उसे कि हम वायरल कर देंगे, लोगों तक पहुँचा देंगे, आपकी फैमिली में भेज देंगे, इस तरीके से। साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेंगे आपके ऊपर, जब आप घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे क्योंकि जब आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसके अ, बचने के चांसेस क्या हो सकते हैं या मेरे लिए कौन-कौन से रास्ते हैं। और वो आपको एक्सटॉर्ट करते रहेंगे और ऐसा नहीं है ये सिलसिला एक बार खत्म हो जाएगा कि आपसे उन्होंने 10,000 माँगे और आपने 10,000 दिए और खत्म, नहीं। वो आपसे जब चाहें उतना पैसा माँग सकते हैं। वो 10 लेने के बाद कहेंगे और दो, और दो, और दो और ये चलता रहेगा जब तक आप बिल्कुल खाली नहीं हो जाते या जब तक आप परेशान नहीं हो जाते। और ऐसे केसेस में लोग गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं। सुसाइड तक चले जाते हैं लोग या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों लोगों से सोशल गैदरिंग खत्म कर लेते हैं। अपनी स्टडी से कट जाते हैं लोग। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और स्कैमर क्या करेगा, आपके पास स्कैम करके डिसअपीयर हो जाएगा। आप पता भी नहीं लगा पाओगे कहाँ था, कौन था, कैसे था, क्योंकि आप तो किसी को बता ही नहीं रहे। तो ये सिनेरियो भी आता है डीफेक के केस में। अब अगला जो स्कैम है वो है इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट। पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है और वो भी शॉर्ट टर्म में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर कोई आपको बोले कि आप 10 दो और मैं आपको 100 दूँगा और आपको प्रूफ्स भी दिखा दे, फेक स्क्रीनशॉट्स दिखा दे, सोशल मीडिया पे पोस्टिंग दिखा दे, लोगों की टेस्टिमोनियल्स दिखा दे, लोगों ने डाल रखा है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी, आपने मेरे 10 के 100 बना दिए सर, पहले मैं बहुत गरीब था, ये स्टोरी आप सुनते होंगे, मैंने फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया और अब देखो मेरे पे लाखों रुपए आ रहे हैं। अगर ये सिचुएशन होती तो फिर कोई नौकरी नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, सीधा इन स्कैम्स में इन्वेस्ट कर देता और उसका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 रुपए लगा रहे हो और उसका 100 रुपए आपको मिल रहा है, तो अगर आप 10 करोड़ लगा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? फिर तो जितने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं या नौकरी जो लोग कर रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ हैं। बैंक्स जो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के सेविंग अकाउंट्स पे आपको इंटरेस्ट देते हैं, वो भी बेवकूफ़ हैं। तो ये जो पोंजी स्कीम्स बोलते हैं हम इनको, ये जो स्कीम्स होती है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स बोलेंगे कि आप हमें इतना पैसा दो और हम आपको पैसा इतना दे देंगे। अब आप पूछोगे आप कैसे दे दोगे? तो वो कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम जो बड़े-बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन वो आप तो जानते नहीं उनको और ना आपसे पैसा लेंगे। तो हम उनको देते हैं पैसा, वो इन्वेस्ट करके हमें अच्छी रिटर्न देते हैं और फिर हम आपको दे देते हैं। तो आप उनसे पूछोगे तुम्हारा क्या फ़ायदा? तो वो कहेंगे जब आप हमें ₹10 दोगे, हम उनको ₹10 देंगे, वो हमें 10 का 100 देंगे, तब हम आपको 90 दे देंगे, 10 हमारा हो जाएगा। तो आप कहोगे ठीक है यार, इसमें बुरा भी नहीं है। अगर 10 का 90 भी मिल रहा है तो भी बुरा नहीं है। तो ऐसे स्कैम्स बहुत हैं जिसमें आपको ये ल्यूर किया जाएगा कि आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल जाएगी, आप एक बार इन्वेस्ट तो करो। और इससे मिलता-जुलता एक और साइबर क्राइम है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इस केस में आपको हमेशा इन्वेस्ट वहीं करना है जो रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म्स आपको पता ही है कौन-कौन से हैं, जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। और अगर कोई आपको बहुत अच्छी स्कीम दे रहा है, 10 का 15 हो सकता है, 10 का 12 हो सकता है, लेकिन 10 का 100 नहीं हो सकता। एक लेजिटमेट, एक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इसको रेड फ्लैग मान के चलें। अगर कोई इतना बड़ा आपको इन्वेस्टमेंट पे वो दे रहा है प्रॉफ़िट, तो आप समझ जाओ फ्रॉड फ्रॉड है ये, स्कैम हो जाएगा मेरे साथ।
क्रेडिबिलिटी चेक करें, जिस कंपनी में या जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सच में वो है भी या कोई शेल कंपनी बनी बैठी है, कोई फेक तो नहीं है, स्कैम तो नहीं कर रही है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, रजिस्टर्ड है नहीं है, ये सब चीज़ें। खुद को थोड़ा अपडेट रखें इस चीज़ के बारे में और अपने बैंकिंग ऐप्स को सिक्योर करके चलें, क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होंगे वो ये भी कह सकते हैं कि हम आपको एक ऐप दे रहे हैं, आप अपना बैंक उसमें रजिस्टर कर दो, और अगर उसमें आपका ओटीपी ले लिया तो बचने के चांसेस ही खत्म है। अब मैं बात कर रहा था कि इससे रिलेटेड एक स्कैम और है जो चल रहा है। वो स्कैम क्या है वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे, बट वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुना भी होगा उसके बारे में। आगे चलते हैं, सेक्सटॉर्शन स्कैम्स। ये स्कैम्स तो बहुत है और ये तो बहुत ही ज़्यादा चलता है। सेक्सटॉर्शन स्कैम या सेक्सटॉर्शन का मतलब होता है एक ऐसी फॉर्म है ब्लैकमेल करने की, जिसमें 2 तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है। या तो आपको ट्रस्ट जीत कर, ठीक है, या आपको धमका कर। तो इसमें स्कैमर क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका सोशल मीडिया है, वहाँ पर कम एज के बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, छोटे हैं, थोड़े समझ कम है उन लोगों के अंदर। सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है उन्हें नहीं पता। वो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स भी वहाँ पर बैठे हुए हैं घात लगाकर। वो इस चक्कर में है कि वो एक ऐसा टारगेट चूज़ कर लें जिससे ईज़ी हो जाए उनको उसको मैनिपुलेट करना। सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं वो। इसमें वो क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटिंग साइट्स का यूज़ कर सकते हैं वो लोग, जहाँ पे अ, लड़का लड़की के लिए ढूँढ रहा है अपना मैच, या फिर लड़की लड़के के लिए ढूँढ रही है। या सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए आपके, इंस्टाग्राम्स हो गया आपका, फेसबुक हो गया, ये सब जगह हो गई। तो वहाँ पे क्या करेंगे कि वो आपसे पहले जो कॉमन लोग हैं आपके सर्कल में, पहले उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे रैंडमली और उनके साथ जुड़ जाएँगे। म्यूचुअल फ्रेंड्स बन जाएँगे आपके, और फिर आपको रिक्वेस्ट, यानी जो उनका टारगेट है उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो टारगेट को लगेगा कि ये मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स में है तो शायद अच्छा ही हो, लोग जानते ही हों इसे, और वो भी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर धीरे-धीरे बात-वात वगैरह शुरू होगी और फिर जो अटैकर है वो मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा उस टारगेट को, और उससे फिर कुछ टाइम बाद, एक ऐसी फ्रेंडशिप बनाने के बाद, उससे वो कहेगा कि आप अपनी न्यूड्स मुझे भेजो, और विद फेस वो कहेगा उस चीज़ को भेजने के लिए कि आप अपने फेस के साथ मुझे भेजो, और वो आपको प्रेशराइज़ करके रखेगा कि भेज दो ये, और जब भी आप उसको, वो अपना कभी भी फेस आपको रिवील नहीं करेगा। वो हमेशा अपने आप को या तो कहेगा मेरा कैमरा खराब है, या मेरे यहाँ पे बैंडविड्थ का इश्यू चल रहा है, किसी भी तरीके से, या आपको जो वो अपनी फ़ोटोज़ भी भेजेगा वो मुफ्त होगी। हो सकता है एआई से यूज़ की बना के रखी हो, या किसी कहीं से उठा लिया हो, किसी पोर्टल से उठा लिया हो उसने, ऐसी बहुत सारी मिल जाती हैं। तो उन्होंने वो आपको, आपके जो टारगेट है उसको भेज दी, और टारगेट ने अपनी इंटीमेसी या प्राइवेट फ़ोटोज़ अपनी दे दी। अब वहाँ से उनका गेम शुरू होता है। वो क्या करेंगे, अब आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देंगे कि अगर तुमने मुझे पेमेंट नहीं करी तो मैं इनको सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी किसी भी साइट पे इसको रिवील कर दूँगा, और उस सिचुएशन में आप कभी भी ना तो किसी को बता पाओगे और ना बोल पाओगे। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। अपनी सेंसिटिव कंटेंट कभी किसी से शेयर मत करें, ठीक है? कोई पर्सन जेन्युइन है तो उसको इन इन पर्सन मीटिंग करें, मिलें उससे, जानें, थोड़ा टाइम दें और समझें पहले कि पर्सन क्या है, और कभी ये सब चीज़ें तो शेयर ही ना करें, क्योंकि आप कहीं से कुछ भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन अपनी डिजिटल फुटप्रिंट्स, अपनी हिस्ट्री इंटरनेट से कभी भी रिमूव नहीं कर सकते। कहीं न कहीं कोई न कोई वीडियो, फ़ोटो आपकी नेट पर रह ही जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जिनके भी एमएमएस या वीडियोज़ आज तक वायरल हुए हैं, वो पूरी तरीके से पूरी दुनिया में इंटरनेट से कहीं गायब नहीं हुए। वो कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह पर आज भी हैं। एक हद तक आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके आगे आपका कंट्रोल नहीं है। क्योंकि वो किस तरीके से कहाँ पे यूज़ हो रहा है, किसी ने ऑफ़लाइन स्टोर करके रख रखा है, वो कभी भी अपलोड कर सकता है। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो लॉ से बाहर हो गई हैं, या अदर कंट्रीज़ में आ गई हैं, या फिर ट्रीटी साइन नहीं है हमारी उनके साथ, या कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो सेक्सटॉर्शन स्कैम में वही होता है कि आपकी न्यूड फ़ोटोज़, वीडियोज़ ले ली जाएगी, या आपको इसमें, आपने सुना भी होगा, एक व्हाट्सएप कॉल पे काफ़ी लोगों के साथ हुआ है ये, कि कॉल आती थी
और उधर एक लड़की न्यूड बैठी होती थी, वो वीडियो कॉल करती थी, या फिर पहले वो बात-वात करती थी लड़की, आपसे व्हाट्सएप नंबर पे हाय हेलो करती थी, फिर आपका थोड़ा ट्रस्ट बनाती थी, फ्रेंडशिप करती थी आपके साथ और फिर वीडियो कॉल पे बात करने के लिए कहती थी। तो जैसे ही वो वीडियो कॉल करती थी, तो वो वहाँ पर न्यूड होके बैठी थी और जो सामने वाला पर्सन होता था, उसके साथ वो अपनी उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते थे या फ़ोटो ले लेते थे और फिर उस पर्सन को भेजते थे कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया, तो ये मैं तुम्हारी फ्रेंड्स एंड फैमिली में सर्कुलेट कर दूँगी या कर दूँगा। इवन वो थाने से यानी साइबर क्राइम से या फिर पुलिस की तरफ से भी नकली पुलिस ऑफिसर का कॉल आता था और वो कॉल करके बोलता था कि ऐसे-ऐसे तुमने लड़की के साथ गलत किया और उसकी फ़ोटो व वीडियो हमारे पास आई है और वो कह रही है कि तुमने उसे ब्लैकमेल किया है न्यूड होने के लिए इस तरीके से। तो उस तरीके से भी वो पैसा ले लेते हैं आपसे। तो ये सेक्सटॉर्शन स्कैम्स में आ जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइम आता है फेक डिजिटल लोन ऐप्स, पैसा। ये जो स्कैम्स हैं बेसिकली लोन ऐप्स का स्कैम है। इसमें आपको बोलेगा कि आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आधार, पैन दो बस, आपको इंस्टेंट लोन अप्रूव हो जाएगा। उस लोन में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएँगे, कहेंगे बहुत माइनर सा है या है ही नहीं या उसमें कुछ हिडन चार्जेस छिपे होंगे, ठीक है? लेकिन आपको भी नहीं पता कि जो एप्लीकेशन वो फेक लोन की आपने इंस्टॉल की है आपके सिस्टम में, वो आपको कितना बड़ा हार्म पहुँचाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोन की एप्लीकेशन है, जो आपने गूगल से डाउनलोड की है। मैं प्ले स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल से, एपीके फाइल। जब आपने वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करी, आपका गूगल प्ले स्टोर बोल रहा है, आपको अलर्ट दे रहा है कि इस चीज़ को डाउनलोड करके इंस्टॉल मत करो। ये आपके लिए मॉलिशियस एप्लीकेशन हो सकती है। लेकिन आपने कहा क्योंकि जब आपको लालच होता है, ग्रीड होती है आपकी, तो आप अपनी प्राइवेसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो भी आप अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो प्राइवेसी बहुत सस्ती चीज़ हो गई है हमारे लिए, लेकिन हैकर्स के लिए बहुत महँगी चीज़ है क्योंकि वो इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उससे वो बहुत पैसा बना लेते हैं। तो जब वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगी, तो वो आपकी गैलरी का भी एक्सेस लेगी, आपके कॉल लॉग्स का भी एसएमएस लेगी, एसएमएस लॉग्स का भी एक्सेस लेगी, माइक्रोफ़ोन, कैमरा, पूरे फ़ोन का एक्सेस ले लेगी, जो परमिशन उसको नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी ले लेगी। अब एक लोन की एप्लीकेशन को आपके माइक्रोफ़ोन की क्या ज़रूरत है? आपकी वीडियोज़ की क्या ज़रूरत है? या आपके कॉन्टैक्ट की क्या ज़रूरत है? लेकिन वो एप्लीकेशन आपकी सारी चीज़ों को अपने सर्वर पे अपडेट कर लेगी, अपलोड कर लेगी और वहाँ से फिर असली गेम शुरू होता है। फिर वहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट आपकी लीक हो जाती है, फिर वो लोन ऐप्स में से आपका जो धमकियाँ आने लगती हैं आपको कॉल्स पे कि तुमने पैसा नहीं चुकाया तो ये करेंगे, वो करेंगे या आपको आपके कॉन्टैक्ट को फ़ोन कर के बोला जाता है कि भई मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे प्लीज़ पैसे भेज दो ये मतलब स्कैम है ये। और आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो लीक हो ही गई, जो आपकी गैलरी में डाटा था, फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ थी, जो आपकी प्राइवेट मोमेंट्स थी या जो भी रख रखा था आपने, फैमिली की थी, डॉक्यूमेंट्स थे आपके आधार, पैन की फ़ोटोज़ थी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स थे, जो भी चीज़ें आपके फ़ोन की गैलरी में या फिर आपके स्टोरेज में स्टोर होती हैं, वो सब उनके सर्वर पे अपलोड हो सकती हैं। तो हमेशा बचने के लिए इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, फेक लोन ऐप से बचें, कोई भी लोन ऐप अगर आपको ज़्यादा ईज़ी लग रहा है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है, बड़े सस्ते में आपको बिना डॉक्यूमेंट प्रूफ के लोन दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि एक रेड फ्लैग है, इसको तो छूना ही नहीं है, डाउनलोड ही नहीं करना है। प्ले स्टोर के अलावा कहीं से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, हमेशा चेक करें कि कितनी परमिशंस ये एप्लीकेशन ले रही है, ये सब चीज़ें। जब तक आपका सिविल स्कोर नहीं है, क्रेडिट चेक उसने किया ही नहीं और आपको लोन देने के लिए तैयार है, तो आप समझ जाओ कि कैसे दे रहा है वो, ठीक है? ये फेक हो सकता है। तो ये तरीके हैं बचने के लिए। इसके बाद आता है क्यूआर कोड पेमेंट स्कैम्स। क्यूआर कोड पेमेंट स्कैम भी बहुत चल रहा है। इवन कुछ टाइम पहले जब पेटीएम और फ़ोनपे के क्यूआर कोड्स शॉप्स पे लगना या मार्केट में लगना शुरू हुए थे, तो आपका ये जो साउंड बॉक्स था वो नहीं हुआ करता था। अब ऐसे में स्कैमर्स इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा सकते थे। वो उस असली क्यूआर कोड के ऊपर अपना नकली क्यूआर कोड चिपका के जा सकते थे। सेम नकली मिलता-जुलता और जितनी भी पेमेंट्स आती थी वो उनके अकाउंट्स में आ सकती थी। इसलिए साउंड बॉक्स का यूज़ होने लगा ताकि जो शॉपकीपर है, जो भी मर्चेंट है उसको पता चल जाए कि जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में ही आई है। दूसरा ऐसे जो क्यूआर कोड होते हैं वो सिर्फ़ पेमेंट के लिए नहीं, आपकी आइडेंटिटी रिवील या चुराने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यूआर कोड बनाया गया है जिसके पीछे कोई मॉलिशियस लिंक या एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम में
एग्जीक्यूट हो जाए या फिर इंस्टॉल हो जाए या रन हो जाए, उससे भी आपका सिस्टम, मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है उसके पासवर्ड को चेंज करने का उसके पीछे कोई लिंक हो, या फिर आपकी पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए वो बारकोड हो, कुछ भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप हमेशा चेक करें कि जब भी आप बारकोड स्कैन कर रहे हैं तो पहले देखिए कि जो यूआरएल है वो एकदम ओरिजिनल है, कोई भी अनट्रस्टेड सोर्स से तो नहीं है। और अगर आपके बैंक से कोई भी ट्रांज़ैक्शन होती है तो अपने बैंक के ऐप में जो नोटिफ़िकेशंस होती हैं उनको इनेबल रखें हमेशा, ताकि कोई भी अगर आपके अकाउंट से ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास पॉपअप आ जाए ताकि आप उसको डिनाय कर सकें। यूआरएल को हमेशा चेक करें, और जितनी भी अनफ़ैमिलियर या सस्पिशियस आपको चीज़ें लगती है उनसे बच के रहें। कभी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दें। पब्लिक प्लेसेस में जब भी आप कोई पेमेंट करें तो बारकोड स्कैन करने के बाद मर्चेंट यानी कि जो शॉपकीपर है या जिसको आप पे कर रहे हैं उससे एक बार कन्फर्म कर लें कि जो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद नाम आया है वो उसी का है या नहीं, या जो अकाउंट आया है वो उसी का है या नहीं। तो इस तरीके के क्यूआर कोड पेमेंट स्कैम आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे जहाँ पे लोग अपने क्यूआर कोड डाल के छोड़ देते हैं। इवन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी आपकी लीक हो सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कैम आता है वो आता है गवर्नमेंट जॉब और वर्क फ्रॉम होम स्कैम। वर्क फ्रॉम होम स्कैम और गवर्नमेंट जॉब स्कैम तो बहुत है। हर किसी को जॉब चाहिए, खासकर गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो फिर ज़्यादा बेटर है। और वर्क फ्रॉम होम में भी क्या होता है, आपको ट्रैवल करने से बच जाते हैं आप। तो अगर वर्क फ्रॉम होम जॉब भी आपको मिल रही है तो यूज़र सोचता है क्यों ना, कर ही लेते हैं अप्लाई, क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होगा कि जो स्कैमर है वो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेजेगा या फिर आपको एक जॉब का डिस्क्रिप्शन बना के भेजेगा, और उसमें बोलेगा कि ये जॉब है, इसमें आपको ये ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ये आपका ड्रेस कोड रहेगा, ये आपका सैलरी पैकेज रहेगा। मतलब बहुत ही अच्छा और लेजिटिमेट तरीके से आपको शो करेगा। और इन रिटर्न अब उसको क्या मिलेगा? इन रिटर्न उसको 2 चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ आपका सीवी, जिसमें आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, आपकी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, आपका इंटरेस्ट, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपकी हॉबीज़, और आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो बहुत काम की चीज़ हो सकती है किसी भी एक अटैकर के लिए। वो आपके डाटा को बेच सकते हैं आगे चल के। दूसरा, वो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ माँगते हैं। कहते हैं ये जो जॉब है, आप अगर इसमें एनरोल करना चाहते हैं या आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ देने पड़ेंगे। वो आपको ये भी बोल सकते हैं कि लिमिटेड सीट्स हैं सर। जॉब आपको पता ही है गवर्नमेंट का क्या हाल रहता है। अगर 1 सीट है तो उसके लिए अप्लाई करने वाले 1000 हैं, तो वो कहेंगे लिमिट सीट्स है सर। अगर आप अभी रजिस्टर्ड कर देते तो हम आपकी सीट रिज़र्व कर देंगे, एप्लीकेशन इंटरव्यू रिज़र्व कर देंगे आपका। आपका रिज़्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा सर, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो लोग फटाफट कर देते हैं। या फिर ये तो गवर्नमेंट जॉब का केस था। वर्क फ्रॉम होम के केस में वो बोलेंगे हम आपको लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको ब्रॉडबैंड देंगे, पूरी वेलकम किट देंगे, जिसके लिए आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा, या आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, या आपको कूरियर चार्जेस देने पड़ेंगे, या आपको ट्रेनिंग फीस देनी पड़ेगी, इस तरीके से। तो कभी भी आपको ऐसे ऑफर आ रहे हैं तो आप समझ जाओ ये सब रेड फ्लैग है। कभी भी आपको रेस्पॉन्ड नहीं करना है इन सब चीज़ों के लिए। कोई इतना दानवीर नहीं बैठा है आपके लिए कि कोई आपको गवर्नमेंट जॉब, अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वो पहले खुद लेगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी अच्छे सरकारी विभाग में एक अच्छी पोस्टिंग मिल रही है जो बहुत अच्छे लेवल पे सैलरी पैकेज दे रही है, तो सबसे पहले तो वही पर्सन अप्लाई करेगा उसके लिए जो आपको गवर्नमेंट जॉब लगवा रहा है। तो वो आपको क्यों लगवाएगा? तो आप ये समझने वाली चीज़ है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई ज़्यादा ही अच्छे से आपके बाद ईमानदारी दिखा रहा है कि देखो बस इतना पैसा देना है और हो जाएगा काम, या अपफ्रंट फीस माँग रहा है आपसे, या आपने जो डिस्क्रिप्शन देखा जॉब का उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो आप समझ जाओ कोई अनपढ़ ही है, उठा के कहीं से उठा के चिपका दिया इधर, या कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी अच्छी नहीं है। क्योंकि कोई भी जो एक अच्छी जॉब होगी, जो एक प्रॉपर जॉब होगी, वो आपसे प्रॉपर एक हायरार्की फॉलो होती है, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जिसमें आपको प्रॉपर कॉल की जाएगी, आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाएगी, आप उस जॉब रोल के लिए फिट भी हो या नहीं, आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, फिर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, फिर आपसे अमाउंट पे नेगोशिएशंस की जाएँगी,
फिर आपको उसमें कोई चार्जेस नहीं लिए जाते आपसे किसी भी तरीके का, कोई इसमें हिडन चार्जेस नहीं होते, कोई भी आपको ट्रेनिंग फीस या कुछ भी नहीं देना होता। तो हमेशा बच के चलें। ऐसे बहुत सारे स्कैम्स अभी चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि जॉब्स की शॉर्टेज तो हमेशा रही ही है और हर किसी को चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हमेशा याद रखें, कभी भी आपको ऐसी कोई जॉब का ऑफ़र आए तो उसकी ऑफ़िशियल साइट पे जाके चेक करें कि वहाँ पे कोई नोटिफ़िकेशन है क्या? क्या वहाँ पे उन्होंने कोई ऐसी जॉब पोस्ट कर रखी है? कभी भी अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐसे स्कैमर्स को ना दें। और अगर किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डीआरडीओ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इस तरीके की जॉब का ऑफ़र आ रहा है, जो फेक स्कैमर ने भेजा है, तो आप उस गवर्नमेंट साइट पे जाके उसको बताएँ, उनको बोलें कि सर इस तरीके से फेक स्कैम्स चल रहे हैं, आपकी साइट से रिलेटेड है, ये वो। उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पे कॉल करें या उनके जो हेल्पलाइन नंबर है, उस पे कॉल करके उनको बताएँ। तो ये गवर्नमेंट जॉब और वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स हो सकते हैं आपके, तो इनसे हमेशा बच के रहें। कोई आपको फ्री में वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी नहीं दे सकता है ऐसे, अगर वो प्रॉपर तरीके से सेट ऑफ रूल्स और एक प्रोसीजर फ़ॉलो नहीं कर रहा। कोई सीधा मुँह उठा के आपको कॉल कर रहा है, "सर हम आपको गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, ₹2500 दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस।" वर्क फ्रॉम होम स्कैम में भी यही होगा कि हम आपको टूल किट दे देंगे, लैपटॉप, इंटरनेट सब कुछ देंगे, आपका होम सेटअप कराएँगे, तो उसके लिए ₹25,000 आपको देना होगा, सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपको रिफंड हो जाएगा 1 महीने बाद। ठीक है? तो ये सब चीज़ों से आपको बच के चलना है। फिर आपका आ जाता है क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग्स फ्रॉड्स। ये भी सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट स्कैम्स के नाम पे। क्रिप्टो करेंसी का भी लोग कह रहे हैं कि भई आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि देखा बिटकॉइन की एक टाइम पे वैल्यू क्या थी, आज क्या हो गई है। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनमें आप शिबा कॉइन्स हैं, आप और भी बहुत सारे कॉइन्स अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ये वो। या फेक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों ने पैसा हज़ारों लोगों ने पैसा लगाया। इवन यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे स्कैम्स को प्रमोट कर रहे हैं। गैम्बलिंग, अ, बैटिंग और आपका ट्रेडिंग के लिए ये क्रिप्टो करेंसी के लिए हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रॉड्स हो गए, इस तरीके के। तो कभी भी आपको इन झांसों में नहीं पड़ना। मैंने आपको बताया था कि 10 का 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन 10 का एकदम से 100 हो जाए, ये तो चमत्कार से बड़ी चीज़ है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है? तो ऐसे स्कैम से आपको बच के चलना है। मैं एक लेजिटिमेट तरीके की बात कर रहा हूँ, मैं वो जुए और गैम्बलिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा कि 10 कहाँ होता है, सिर्फ 10 का 100 हो जाता है, हमने देखा है लोगों का हो रहा है। मैं उनकी बात कर ही ना, ये तो इल्लीगल वेज़ हैं, मैं लीगल वेज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ आपका पैसा भी सिक्योर रहे, ठीक है? जहाँ पे रिकवरी के चांसेस हों, उनमें रिकवरी के चांसेस नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में स्कैम करने से बचें और अगर कर भी रहे हैं, तो मैंने आपको बताया एक जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म से करें। समझें, पूरा प्रोसीजर समझें, क्या है, क्या नहीं है, क्यों है, क्या गारंटी है, कितना लॉस हो सकता है, क्या है, ये सब चीज़ें। तो स्कैमर तो आपको बहुत कुछ बोलेगा कि हमारे पास एडवाइज़र्स हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन सब चीज़ों में राय देंगी, समझाएँगी। आपको नहीं पड़ना इन चक्करों में, बच के रहना है हमेशा। तो कोई भी अगर आपको फेक प्रॉमिस, फ़ॉल्स प्रॉमिस करेंगे, वो आपको फेक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म्स आपके सामने रख देंगे। पोंजी स्कीम्स जो मैंने आपको बताया था कि हाई रिटर्न मिलेगा आपको, आप छोटा-सा अमाउंट दोगे, बड़ा अमाउंट मिलेगा क्योंकि हम बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के साथ कोलैब करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। पंप एंड डंप स्कीम्स भी बोल सकते हैं, जिसमें आपके प्राइस को दिखाएँगे कि अगर आप बल्क में शेयर बाय कर लेते हो या बल्क में कॉइन बाय कर लेते हो 50 लाख, 50,000, 1 लाख के, तो आपको बहुत ज़्यादा वो मिलेगा। बॉट्स लगा के रखते हैं, नकली बॉट्स लगा लेंगे जिसमें आपको दिखाएँगे कि देखो प्रॉफ़िट कितना हाई जा रहा है हमारा, स्क्रीनशॉट्स दिखाएँगे आपको, इस तरीके से, तो इनसे बच के रहना है आपको। फिर आपका आता है सोशल मीडिया और व्हाट्सएप स्कैम्स। अब ये जो स्कैम्स हैं, ये आपने सुना होगा केबीसी, सर आपकी लॉटरी लगी है, मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन। ये बहुत चला था बीच में। इवन मेरे पास भी ऐसी कई काफ़ी कॉल्स आई हैं और जब ऐसी कॉल्स आती हैं तो हम समझ जाते हैं क्योंकि हम इस फ़ील्ड में हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से इन चीज़ को डील करना है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कभी भी उसको ऐसी कोई कॉल आती है, तो कहीं न कहीं यूज़र फँस ही जाता है। सॉरी। फ़ोन स्कैम्स क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको कॉल किया और बोला मैं बैंक से बात कर रहा हूँ या मैं किसी गवर्नमेंट बैंक से बात कर रहा हूँ या मैं पोस्ट ऑफ़िस से बात कर रहा हूँ, ये वो, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है सर, या जामतारा स्कैम्स के बारे में आपने सुना होगा, वो आपको कॉल करते थे, सर आपका
क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, या बैंक की तरफ से आपको सर ऑफर मिल रहा है, या आपको गिफ्ट हैम्पर मिल रहा है, तो एक ओटीपी आया होगा आपके पास, वो बता दीजिए। तो इस तरीके से। तो इम्पर्सनेशन स्कैम्स का मतलब क्या होता है, मैं खुद को एक बैंक एम्प्लॉय बता के आपको कॉल करूंगा और आपके साथ स्कैम कर दूंगा। प्राइज और लॉटरी स्कैम्स में क्या होता है कि मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ, ये जैसे अभी दिवाली होली आ रहा है आपका, तो उसमें क्या होगा, आपको कहेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट पे आपको इतना बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, या इस पे ये ऑफर चल रहा है, आप अगर अभी इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस वेबसाइट पे जाके क्लेम कर लीजिए, या आपको फ्री प्राइज मिला है, और या आपके लिए कुरियर है, बस आपको यहाँ पे कस्टम चार्जेस पे करने पड़ेंगे, या फिर आपको इसका डिलीवरी चार्ज देना है, बाकी प्रोडक्ट आपके लिए फ्री है, या आपने एलजी का टीवी जीता है। इस तरीके के स्कैम प्राइस और लॉटरी स्कैम्स में। फेक चैरिटीज का मतलब है कि आपको कांटेक्ट करके बोला जाएगा कि हम एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है और हम गरीबों की मदद करते हैं, या फिर हम वृद्धाश्रम में पैसे लगा रहे हैं, तो हम आपको एक बैंक अकाउंट दे रहे हैं, आपसे जितनी भी मदद मिले। ये आपने ऑफलाइन भी देखा होगा, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स आपके आसपास आते हैं घरों के, एक पेपर लेके, जिसमें दिखाते हैं कि हम जो आंखों से देख नहीं पाते, या जो हाथ पैर जिनके डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप लोगों के लिए हम अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस पेपर पे साइन करके जो भी आपसे मदद मिले वो आप दे सकते हैं हमें। फेक चैरिटीज़। मैं ये नहीं कह रहा कि सब नकली होते हैं, मोस्टली केसेस में स्कैमर हो सकते हैं जो ऑनलाइन आपसे इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अगर असली होगा तो उसकी ऑफिशियल साइट भी होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन भी होगा प्रॉपर, और प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें काम कर रही होगी, सोशल मीडिया हर एक जगह पे उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो नकली होगा वो कभी भी बनेंगी वेबसाइट, पैसा आपसे लूटा जाएगा, जैसे कोरोना में हुआ था। आपका था पीएम केयर फंड, ठीक है, कोरोना के लोगों के लिए, खाने के लिए, गरीबों के लिए। जो ओरिजिनल पीएम केयर फंड था वो तो गया सरकार के पास, सरकार ने उसको यूज़ किया जहाँ पे किया। लेकिन ऐसे लोगों ने नकली भी बना दिए और पैसा लोगों से बहुत लूटा, ठीक है? तो कॉमन टाइप्स ऑफ फ़ोन स्कैम्स हैं, और अपन बचने का तरीका वही है, अपनी कभी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। कॉलर की जब भी कॉल आए या मैसेज आए, हमेशा उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि कहाँ से आ रहा है, और ऐसे स्कैम्स को हमेशा रिपोर्ट कर दें। दूसरा व्हाट्सएप स्कैम पर वही है, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप दोनों पे आपको मैसेज के थ्रू ये लोग भेज सकते हैं चीज़ें। एक चीज़ और, जो आपका व्हाट्सएप स्कैम में एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी भी कोई भी आपसे कॉल करने के लिए फ़ोन माँगता है, ठीक है? वो आपसे कहता है कि मुझे आप अपना थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई है, या मेरे को एक अर्जेंट फ़ोन करना है, या मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, कुछ भी। तो कई बार होता है कि हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो सच में उसकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम हो और उसकी नीड हो उस टाइम पे, इमरजेंसी हो, लेकिन मोस्टली केसेस में ये एक स्कैम हो सकता है। अटैकर क्या करेगा, आपके फ़ोन को लेगा और हल्का-सा आपसे थोड़ा-सा दूर हो जाएगा, और आपके फ़ोन को जो कॉल है, देखो आपको पता होगा जब आप व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। या तो आप एसएमएस के थ्रू वेरीफ़ाई कीजिए, लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि एसएमएस जब आपके पास नहीं आता, तो व्हाट्सएप कहता है कि आप कॉल पे अपना ओटीपी मँगा सकते हैं। तो वो ओटीपी आपका कॉल पे भेज देगा। तो जो स्कैमर हैं, जो अटैकर है, वो क्या करेंगे, आपका फ़ोन लेने के बाद आपका कॉल फॉरवर्ड कर देंगे। यानी कि जब भी आपके पास कोई कॉल आएगी, वो उस नंबर पे चली जाएगी जिस पे उन्होंने फॉरवर्डिंग लगा दी है। तो अटैकर उस केस में आपके व्हाट्सएप को जब रजिस्टर करने की कोशिश करेगा, तो वो चूज़ करेगा ऑप्शन वेरीफाई बाय कॉल या ओटीपी ऑन कॉल, ठीक है? तो जब ओटीपी के लिए कॉल आएगी, तो वो आपके नंबर पे आने की बजाय डाइवर्ट हो जाएगी दूसरे नंबर पे, और वो अटैकर का नंबर होगा। अटैकर उस नंबर पे कॉल रिसीव करेगा, ओटीपी उसे मिल जाएगा, और वो आपके व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में रजिस्टर कर लेगा, और उसका व्हाट्सएप आपके पास आ जाएगा। अब व्हाट्सएप आ गया तो कॉन्टैक्ट भी आ सकते हैं उसमें, क्योंकि वो लोगों के मैसेजेस भी आएँगे। आप किसी से भी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके कह सकते हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, अपने रिलेटिव से बात कर सकते हो, और आप उनसे कहोगे कि प्लीज़ मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, 20,000 रुपए दे दीजिए, मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। अब जो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन है, उसे तो यही लगेगा कि भई ओरिजिनल पर्सन है, नंबर से कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, दे देता हूँ, भेज देता हूँ। वो आपसे कॉन्टैक्ट के लिए बोलेगा कि कहाँ भेजना है, तो आप बारकोड भेज दोगे, जो क्यूआर कोड स्कैन मैंने बोले थे।
वो जब वो स्कैन करेगा तो पेमेंट उस अकाउंट में चली जाएगी जिसमें वो रजिस्टर्ड है, और स्कैमर अपना मिसयूज कर लेगा। तो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो है आपका फ़ोन। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो चीज़ है वो है फ़ोन। फ़ोन आपको हमेशा सिक्योर करके चलना है, ऐसे किसी को नहीं देना। इन केस किसी को ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो आप उसको बोलो मैं डायल कर देता हूँ, आप नंबर बताइए। आप नंबर डायल कीजिए, उनको कॉल लग जाए तो उनसे पूछिए कि आप यही बात कर रहे हैं जिनसे उनको बात करनी थी। फिर उसके बाद फ़ोन को लॉक करके उस बंदे को दे दीजिए, क्योंकि जब वो लॉक पे रहेगा तो वो अनलॉक नहीं कर पाएगा, उसमें चेंज नहीं कर पाएगा कुछ। और अपने सामने ही उससे बात करवाइए। बात कराने के बाद फ़ोन वापस ले लीजिए। उसके हाथ में मत दीजिए, उसको थोड़ा दूर मत जाने दीजिए, क्योंकि डाइवर्ट करने में कुछ ही सेकंड का काम होता है। और अगर डाइवर्ट हो गया तो फिर वो आपके ओटीपीज़ को भी ले लेगा। बैंकिंग पासवर्ड्स को भी रीसेट कर सकता है, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड्स आपके मोबाइल से ही कनेक्टेड होते हैं और मोबाइल से ही रीसेट हो जाते हैं। तो ये सारे जो स्कैम्स हैं, ये सारे के सारे चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। तो इसमें आपको समझना होगा कि किस तरीके से साइबर क्रिमिनल्स की मोडस ऑपरेंडी रहती है। कोई भी स्कैम्स ऐसे ही नहीं होता। वो अपने टारगेट को पहले चूज़ करते हैं कि किसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउसवाइफ्स हैं, तो वो उनको मेकअप प्रोडक्ट्स के, कपड़ों के, या उनके हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से वो स्कैम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ को बोलेंगे लैपटॉप ले लो, ऐसा नहीं बोलेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है वो लेगी नहीं। वो उनको वही चीज़ बेचेंगे जो उनके यूज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनको बोलेंगे कि लैक्मे की हमारे पास ये मेकअप किट है, जो ओरिजिनल प्राइस उसका 5000 है, लेकिन अभी इसकी होली ऑफर पे आपको 1499 का मिल जाएगा। अब सामने वाला पर्सन सोचेगा कि भाई अच्छी बात है, मिल रहा है सस्ते में, ले लेते हैं। तो वो बोलेगा आप पेमेंट कैसे करना चाहेंगे? वो बोलेंगे कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या ओटीपी, या यूपीआई, जैसे भी उनको कराना है। तो ऐसे स्कैम कर लेंगे। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, वर्किंग वूमेन है, तो उसके लिए वो वैसे स्कैम्स करेंगे जो उनके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कैब से ट्रैवल करती हैं तो बोलेंगे कि मैम हम आपको ओला का एक डिस्काउंट वाउचर दे देंगे, जिसमें आपको 5000 का ये डिस्काउंट वाउचर है। अगर आप 5000 पे करेंगी तो हम इसमें आप 10000 की राइड कर सकते हैं, डबल राइड कर सकते हैं। किसी भी तरह की, या फूड फूड कूपन्स दे देंगे, या गिफ्ट वाउचर्स दे देंगे। तो स्कैम तो किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं उसमें वही होगा कि आपसे ओटीपी माँगा जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगी जाएगी, या आपसे कोई ऐप इंस्टॉल कराया जाएगा, या आपके फ़ोन का एक्सेस लिया जाएगा, या आपसे किसी लिंक पे क्लिक कराया जाएगा, और या फिर आपको किसी नंबर पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जिससे आपको बचना है। सोशल मीडिया पर अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सोच समझ के डालें। ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो अपने टारगेट की सोशल मीडिया को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी ले लेते हैं। एक बच्चा है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, और वो हर एक चीज़ को अपने सोशल मीडिया पे डालता है। अब इन केस वो एक ऐसे म्यूज़ियम में जा रहा है जहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है। फ़ोन आपको स्विच ऑफ करके बाहर सबमिट करना पड़ेगा। तो उसने स्टेटस डाला, गोइंग फॉर द म्यूज़ियम टू हैव सम लुक ऑफ द हिस्टोरिकल थिंग्स, एंड उसको फ़ोन बाहर सबमिट। अब गाइज़ मैं अपना कुछ अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं अपना फ़ोन अभी यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में ले लेते हैं। अक्षरधाम मंदिर है, वहाँ पे जाने के लिए आपको फ़ोन सबमिट करने होते हैं बाहर। अब टारगेट ने क्या किया कि देख लिया, अटैकर ने ये समझ लिया कि भई ये फ़ोन अब सबमिट करके जा रहा है। तो वो उसी टाइम सर्कल में उसके पेरेंट्स को कॉल करेगा, और हो सकता है वो बोले कि आपके बेटे का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, और जितना हो सके आप थोड़ा फाइनेंशियली, या हॉस्पिटल लेके आ चुका हूँ, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, 50,000 अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास 10 था मैंने दे दिया, 40,000 और माँग रहे हैं, तो क्या आप प्लीज़ मुझे अर्जेंटली पैसे भेज सकते हैं? अब अगर कोई थोड़ा बहुत भी पैनिक ना हो, तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? अपने बेटे को कॉल लगाएगा कि फ़ोन करके पूछता हूँ। अब उसने कॉल किया अपने बेटे को, जब फ़ोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसने 5-6 कॉल की, क्योंकि फ़ोन तो वहाँ सबमिट है, तो वो उनको यकीन होने लग जाएगा कि हाँ, हो गया, कुछ गलत हो गया उसके साथ। और साइबर क्रिमिनल के अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे और पूछेंगे कि कौन-सा हॉस्पिटल में है, मैं भी आ रही हूँ। तो वो कहेगा ठीक है, आप इस हॉस्पिटल में आ जाओ, पहले आप मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दो।
तब तक अपना साइबर क्रिमिनल अपना पैसा लेके फरार हो चुका होगा, क्योंकि वो तो ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं। जब वो पहुंचेंगे उस जगह पर तब उन्हें समझ में आएगा कि उनके साथ स्कैम हो गया। तो चोरी भी हुई है ऐसे कि लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल दिया, आज हम वहां जा रहे हैं घूमने, विल बी बैक इन 3 days। तो जो चोर थे उनको पता चल गया कि भाई 3 दिन तक इस फ्लैट में कोई भी नहीं है, अब चोरी भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं, एक दिन खा पी के भी जाएंगे। तो वहां पे भी चोरियां हो गई। तो सोशल मीडिया पे सिर्फ उतनी ही जानकारी दो जितना ज़रूरी है। अवॉइड करो अपनी लाइफ़स्टाइल को प्रॉपर्ली तरीके से शेयर करना। कई बार लोग अपनी गाड़ी का नंबर डाल देते हैं, नई गाड़ी आती है सीधा गाड़ी डाल देते हैं। आपको पता है ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे बॉट्स हैं टेलीग्राम पे या ऐसी कई जगहों पे, या पेड सर्विसेज है जिससे आपके नंबर से, गाड़ी के नंबर से आपकी पूरी डिटेल आ सकती है। आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका आरटीओ में जो एड्रेस रजिस्टर है वो भी मिल जाता है, फ़ोन नंबर मिल जाता है। खासकर लड़कियों के लिए तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है, क्योंकि अगर उनका फ़ोन नंबर होता है तो कोई भी उनको साइबर बुली कर सकता है या फिर परेशान कर सकता है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों से बचें, अपने आप को जितना हो सके सिक्योर करके चलें, सोशल मीडिया पे कम से कम इन्फॉर्मेशन डालें, अपने फ़ोन को जितना हो सके सिक्योर करके चलें, एन्क्रिप्ट करके चलें। सेंसिटिव डाटा या अपनी प्राइवेट इंटीमेसी की फ़ोटोज़, वीडियोज़ को स्टोर करके ना रखें। किसी भी गूगल या ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अपनी इंटीमेसी की फ़ोटो पहले तो रखें ही ना, बनाएँ ना। अगर आप फिर भी रखते भी हैं, कुछ भी हैं, तो कभी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये सेव नहीं है। ये चीज़ें तभी लीक हो जाती हैं क्योंकि आपने किसी भी फ्री स्टोरेज के चक्कर में किसी भी साइट पे, किसी भी चाइनीज़ साइट पे, किसी भी ऐसी साइट पे डाल दिया उसको जहाँ पे आपको लग रहा है कि डाटा स्टोर हो गया, लेकिन वो लीक हो गया। किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें ऐसे मॉलिशियसली, गूगल प्ले स्टोर से ही करें। स्कैन करें, कोई भी लिंक आता है तो उसको ऐसे डायरेक्टली ओपन ना करें, ठीक है? तो यही था कि जो कॉमन साइबर क्राइम्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं। अब मैं बता देता हूँ कि आपको 3 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहला, अगर आपके साथ कभी भी कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो आपको 1930 पे कॉल करके बता देना है। कोई बैंक फ्रॉड हो जाता है, कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, 1930 पे कॉल करें। 24 घंटे के अंदर आप उनको बताएँगे तो उनके लिए ईज़ी होगा आपका पैसा रिफंड लाना। दूसरा, कभी भी आपके साथ कोई स्कैम या कोई ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, कोई आपको परेशान करता है, साइबर से रिलेटेड केसेस के बारे में, तो cybercrime.gov.in इस पे आपको जाना है और वहाँ पे अपनी एफआईआर रजिस्टर कर देनी है। 2 केस हो गए। तीसरा, अगर कभी भी आपकी कोई भी इंटीमेटी से रिलेटेड फ़ोटो, प्राइवेट फ़ोटो, न्यूड फ़ोटो, वीडियो आपने किसी को भेज दी गलती से या आपको मैनिपुलेट करके किसी ने ले ली, ये किसी के साथ हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और टीनेज में जो बच्चे होते हैं उनके साथ ज़्यादातर होती है ये चीज़ें। अगर ऐसा कभी भी हो जाता है तो एक वेबसाइट है stopncii.org। मैं दोबारा बता देता हूँ, stopncii.org। इस पे जाके आप अपना इशू या कंसर्न रेज कर दें, तो जितना हो सकता है वो आपका इंटरनेट से ये चीज़ें रिमूव करवा देंगे, ठीक है? तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखें। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी, एक अच्छा एक्सपोज़र मिला होगा और आप आगे इन फ्यूचर इन सब चीज़ों से बच के चलेंगे। आने वाले सेशंस में भी हम बहुत कुछ लाने की सोच रहे हैं, तो अगर आपको इंटरेस्ट आए और आपको लगा कि ये चीज़ें जानने से आपकी लाइफ़ में कुछ चेंजेज़ आएँगे, बेनिफिशियल होंगे और अगर आप इनको अपनी डे टू डे लाइफ़ में अ, इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को भी थोड़ा समझाते हैं तो बेनिफिशियल तभी है। सिर्फ़ पढ़ने से, देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इनसे बच के चलते हैं, तो ज़्यादा बेटर है, तभी साइबर क्राइम केसेस कम होंगे और पुलिस भी इन सब चीज़ों पे काफ़ी काम कर रही है। काफ़ी जगहों की जो पुलिस है, साइबर सेल्स हैं, उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों पे रोकथाम लगाने की कोशिश की है। इवन जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस है लाइक सचिन है, मैं हूँ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में हैं, जो लगे रहते हैं कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व करने के लिए, पुलिस की मदद करते हैं और आप जैसे लोगों को हम अवेयर करते हैं ताकि आप भी लोगों को अवेयर कर सको और ऐसे साइबर क्राइम केसेस से बच सको। तो गाइज़ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स पे अपने क्वेश्चन्स डाल सकते हैं। हम आपको रिवर्ट कर देंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अब आनंद सर। Thank you, Rajat. Thank you so much for this wonderful information which you have shared. रियली ये आज की तारीख में बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ों की, क्योंकि बड़े हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमको सारी